हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है और इससे पहले इसका केवल एक लेक्चर हुआ है। लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी दी थी और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर टी एस, that is the number of electric field lines passing through a given surface is called electric flux। ये बात हमने पहले बता दी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात की थी, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो कि किसी भी रीजन में या किसी भी प्लेस में आपने चार्ज को स्मॉल क्वांटिटी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्मॉल क्वांटिटी की फॉर्म में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और टू नियरेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम है। एट सेपरेशन एट मिनिमम डिस्टेंस, देन that is called continuous charge distribution. If charge distribute in the form of smallest quantity and the distance between two nearest charge is very very small, then that is called continuous charge distribution. There are three parts of this topic. There are three types of charge distribution. One is linear charge distribution along to the length. Second is surface charge distribution along to the plane. And third is volume charge distribution in the free space or three dimensional. Means one dimensional, two dimensional और three dimensional। तीनों बात आपके पास यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन अ रीजन इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, देन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। linear charge distribution। If we charge distribute along to the length of a wire or along to the length of a thin rod of metal या thin metallic rod, then that is called linear charge density। if charge distribute या यो कह दीजिए कि if continuous charge distribution along to the length of a thin wire or along to the length of a thin rod, then it is called linear charge distribution। the charge per unit length of this line charge, suppose करो there is length dl, an element we consider, and the charge on this element is dq, then linear charge density will be dq upon dl, denoting by lambda। charge per unit length of a charging wire or
charging thin rod. Charge per unit length of a charging wire or charging thin rod is called linear charge density. Unit will be coulomb per meter and dimensional formula will be A1 T1 upon L1 means that is m naught m0 sorry L minus 1 T1 A1, that is dimensional formula of linear charge density. If we want to calculate charge at element line element dl, then charge at line element dl is dq is equal to lambda dl. By cross multiply you can calculate dq is equal to lambda dl. And if you want to force due to this charge element at r distance at a test charge q naught, then force at a test charge due to this element df is equal to k q naught q1 q2, तो q1 q2 में q1 की जगह q नॉट आ गया, q2 की जगह लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, that is the force on charge. df is equal to k q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर. ओके, टोटल फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो आप इसका इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं. इंटीग्रेशन लिमिट जो भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिमिट यूज करेंगे. तो टोटल एफ इजिकल टू के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इफ वी टेकिंग continuous charge distribution on a plane, सपोज आपने एक कोई भी प्लेन एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया. इस तरीके से ये प्लेन है, या कोई मान लीजिए मेटालिक सीट है, ये मेटालिक सीट, इसमें अगर आपने चार्ज इस तरीके से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चल रहे हैं तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेन ऑफ ए सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्जिंग सीट, then that is called surface charge distribution. Okay, now there also another quantity, surface charge density, denoting by sigma. Surface charge density, the charge per unit area, the charge per unit area on the charging seat or charging surface is called surface charge density. Means sigma is equal to dq upon ds और da, कुछ भी आप लिख सकते हो. यहाँ पर आपने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया da, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को बता रहा है. सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए. चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्जिंग सरफेस और ऑफ द चार्जिंग सीट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोटिंग बाय सिग्मा. यूनिट विल बी कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर. इट्स यूनिट इज कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 L minus 2 T1 A1, that is dimensional formula. If you want to calculate charge at area element
area element dA will be dq is equal to sigma dA. That is dq is equal to sigma dA. And now if we want to calculate force on a test charge q naught, then there will be dF is equal to force at test charge q naught. dF is equal to k q naught sigma ds or dA अपॉन r स्क्वायर, और F इक्वल टू इंटीग्रेशन k q नोट सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर. तो ये आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो जाता है. ओके, अब अगर मान लीजिए हम, ये टोटल हो गया सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब बात आती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि सपोज करो हम चार्ज को, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को हम किसी फ्री स्पेस में या एक वॉल्यूम में या एक मेटालिक स्फीयर में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे ये कोई भी एक स्फीयर है, इस स्फीयर में आपने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरीके से इक्वली, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब यहाँ पर भी एक नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट हम कंसीडर करें, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लें इस तरीके से dv वॉल्यूम का, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq अपॉन dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम on the volumetric sphere, or we can say in a sphere, then that is called rho it is called volume charge distribution. Okay, and that is rho is equal to dq upon dv. Charge per unit volume of a charging sphere is called volume charge density or simple charge density. Unit will be coulomb upon meter cube. Its unit will be coulomb upon meter cube, and dimensional formula will be m0 n-3 t1 a1. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. अगर हम इस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पर या स्मॉल वॉल्यूम पर चार्ज निकालना चाहें, तो चार्ज एट एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट dv इज dq इक्वल टू रो dv. ये आपके पास इस वॉल्यूम एलिमेंट पर चार्ज हो जाएगा. रो dv मीन्स आपको चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और इसके कारण अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर वही क्यू नोट चार्ज पर फोर्स निकालना चाहा, तो आपके पास यहाँ पर dF फोर्स एट टेस्ट चार्ज क्यू नोट विल बी के क्यू नोट और रो dv अपॉन आर स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू नोट रो dv अपॉन आर स्क्वायर. तो ये आपके पास फोर्स एट टेस्ट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट आ जाता है. टोटल आपके पास ये
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों बात यहाँ पर हो गई है, यानी कि आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ऑल्सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, और ये तीनों टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जिंग रिंग एट इट्स एक्सिस। ये एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जिंग रिंग एट इट्स एक्सिस। किसी भी चार्जिंग रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देयर इज अ चार्जिंग रिंग of radius r, that is center O, its radius is capital R. We want to calculate electric field intensity at x distance from its center on its axis at point P, that is distance x. That is a charging ring. Charge is equally distributed on its circumference. So the linear charge density at there will be lambda is equal to q upon 2 pi r. Because just अभी आपको हमने डिस्कस किया, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज आपने कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और लेंथ 2 पाई आर। ये जो रिंग मैंने ली है ये परपेंडिकुलर प्लेन में ली है, किसके? बोर्ड के। इट इज प्रेजेंट इन द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसलिए इस साइज की बनाई है। मीन्स ये रिंग यूं रखी हुई है, यूं रखी हुई नहीं है। सिंपल, ये रिंग यूं रखी हुई नहीं है, यूं रखी हुई है, तो इसलिए इसको ये बनाई है और ये इसकी एक्सिस है। जैसा मैं आपको पेन से ये क्लियर कर सकता हूँ। सपोज करो ये रिंग है तो ये इसकी एक्सिस है, इस तरीके से ये पोजीशन है। ओके, अब एक एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और एक एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सिमेट्रिकली हम दो एलिमेंट डीएल लेंथ के यहाँ पर लेंगे। एक एलिमेंट यहाँ डीएल लेंथ और एक एलिमेंट यहाँ डीएल लेंथ का। दो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए। ड्यू टू दिस एलिमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज वेक्टर DE, और ड्यू टू दिस ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर DE. There is equal magnitude of these two electric field, but the direction is different. Because you know already फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज को पॉइंट से मीट करने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिफरेंट बट magnitude of both electric field is equal. If there is alpha, there is also alpha, then there will be alpha. So there will be two component of electric field. One is in this direction, that is DE sin alpha, and that is DE cos alpha. Similar, there is also two component, that is DE sin alpha
and that is also dE cos alpha. These d's and alpha are cancel out to each other, and these dE cos alpha are add to each other. So resultant electric field intensity E equal to will be summation of dE cos alpha, because vertical components of all elements are cancelled out, and the resultant of the vertical components due to all elements will be 0, but the horizontal components of all electric fields, due to all electric fields will be add up, because these are in same direction and these are along to the axis. So that is summation dE cos alpha. Since dE equal to k dq upon r square, that is r, small r, that's also small r. So the k dq upon r square or k dq अपॉन आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी, एंड कोस एल्फा इज इक्वल टू कोस एल्फा आप लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर, दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस x square. Okay, now E equal to summation k dq upon r square plus x square multiply x upon under root r square plus x square implies that E equal to k x upon r square plus x square पावर 3/2, ये बाहर आ जाएगा, और समेशन डी क्यू, ओनली समेशन डी क्यू. समेशन डी क्यू जब आप यहाँ पर लोगे, सारे एलिमेंट के चार्ज ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होगा. तो दैट इज E इज इक्वल टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्यू. मीन्स आपके पास ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई बेटा E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. That is electric field intensity due to charging ring at x distance on its axis from center. At x distance from center on its axis, E equal to kq x upon r square plus x square 3/2. If we want to calculate at the center of the ring, then that is x equal to 0 and that will be E equal to 0. अब आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, रिंग की सेंटर पर निकालेंगे, ये रिंग है, सेंटर पर निकालेंगे, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के कारण एक दूसरे की अपोजिट होगी, कैंसिल हो जाएगी, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगी, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगी. इस तरीके से हमारे पास एक ही बात आ जाती है. ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आपको डिस्टेंस दी जाएगी, रेडियस दी जाएगी, चार्ज दिया जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे. अगर मान लीजिए आप लैम्डा डीएल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डी क्यू की जगह आप लैम्डा डीएल लिख लें. लैम्डा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr, तो आप यहाँ डी क्यू की जगह लैम्डा डीएल लिख देंगे, तो के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लैम्डा की जगह
ये वैल्यू आ जाएगी, और dl जो भी आपको जितना भी उसने एलिमेंट दिया हुआ है, 1/4 पार्ट दे रखा है या हाफ पार्ट दे रखा है या 3/2 पार्ट दे रखा है, जो भी, सॉरी 3/2 नहीं 3/4 पार्ट दे रखा है, जैसा भी आपको दिया हुआ है उसकी लेंथ आप यहाँ पर रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसमें आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले से पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपके पास था। इसमें ड्यू टू लाइन चार्ज या यूँ कह दीजिए कि ड्यू टू अ रिंग, आपको अगर मान लीजिए डिस्टेंस दे दी जाए तो आप इसका न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टू दैट।